السلام علیکم دوستو، پاکستان ادبی فورم میں خوش آمدید۔ ہم اس چینل سے آپ کی خدمت میں ادبی اور معلوماتی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اب تک پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور سے متعلق معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں پشاور۔ پشاور پاکستان کا ایک قدیم شہر اور صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کا انتظامی مرکز بھی یہی ہے۔ بڑی وادی میں بنا یہ شہر درہ خیبر کے مشرقی سرے پر واقع ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد اس کے پاس ہی ہے۔ وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کی اہم گزرگاہوں پر واقع یہ شہر علاقے کے بڑے شہروں میں سے ایک اور ثقافتی لحاظ سے متنوع ہے۔ پشاور میں آب پاشی کے لیے دریائے کابل اور دریائے کنڑ سے نکلنے والی نہریں گزرتی ہیں۔ پشاور پاکستان کے نسلی اور لسانی اعتبار سے متنوع ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی شہری آبادی بڑھ رہی ہے، جس کی وجوہات ارد گرد کے دیہات اور خیبر پختونخوا کے دوسرے چھوٹے شہروں کی مقامی آبادی کا روزگار کے سلسلے میں بڑے شہر کو منتقلی، تعلیم اور دیگر خدمات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں فوجی کارروائیوں اور افغان مہاجرین کی آمد سے بھی یہاں کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی، سیاسی اور کاروباری اعتبار سے پشاور سب سے آگے ہے اور علاقے کے ترقی یافتہ ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں طب اور تعلیم کے حوالے سے بہترین تعلیمی اداروں میں سے کئی پشاور میں قائم ہیں۔ خانہ و مردم شماری پاکستان 2017 کے مطابق پشاور کی آبادی 19,70,042 ہے، جو اسے خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا اور پاکستان کا چھٹا سب سے بڑا شہر بناتی۔ ناظرین، پشاور کو جنوبی ایشیا کے چند سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں 7,000 سال قبل کی تہذیب کے آثار پائے جاتے ہیں۔ وسطی، جنوبی اور مغربی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے پشاور صدیوں سے افغانستان، جنوبی ایشیا، وسط ایشیا اور مشرق وسطی کے درمیان میں ایک مرکز کی حیثیت سے قائم چلا آیا ہے۔ قدیم تعلیمی مرکز ہونے کی وجہ سے دوسری صدی قبل مسیح میں بکیشال طرزن تحریر پر مشتمل ایک ریاضی کلیہ جذر معلوم کرنا اس کے نزدیک سے برآمد ہوئی ہے۔ وید دیومالا میں پشاور اور آس پاس کے علاقے کو پشکلاوتی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ارامین کے بادشاہ بھارت کے بیٹے پشکل کے نام سے منسوب ہے۔ تاہم اس بارے ابھی کوئی یقینی رائے موجود نہیں۔ مصدقہ تاریخ کے مطابق اس علاقے کا عمومی نام پرشپورہ، انسانوں کا شہر تھا، جو بگڑ کر پشاور بن گیا۔ دوسری صدی عیسوی میں مختصر عرصے کے لیے وسطی ایشیا کے توچاری قبیلے کشن نے پشاور پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد 170 تا 159 قاف میم اس علاقے پر یونانی باختر بادشاہوں نے حکمرانی کی اور اس کے بعد مملکت یونانی ہند کے مختلف بادشاہ یہاں قابض ہوتے رہے۔ ایک تاریخ دان کے مطابق پشاور کی آبادی 100 عیسوی میں 1,20,000 کے لگ بھگ تھی اور اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 7واں بڑا شہر تھا۔ بعد میں پارتھی، ہند پارتھی، ایرانی اور پھر کشن حکمرانوں نے قبضہ کیے رکھا۔ کشن حکمران کنیشکا 127 عیسوی کے لگ بھگ بادشاہ بنا، نے اپنا دارالحکومت پشکلاوتی موجودہ چارسدہ سے منتقل کر کے پرشپورہ موجودہ پشاور قائم کیا۔ دوسری صدی عیسوی سے بدھ بھکشو، زرتشت، ہندو اور رویت کے پشاور زرتشت مذہب کے کشن حکمرانوں سے مشاورت کرنے آتے رہے تھے۔ کشن حکمرانوں نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت قبول کر لیا اور بدھ مت کو شہر میں سرکاری درجہ مل گیا۔ حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پشاور بدھ مت کی تعلیمات کا اہم مرکز بن گیا، جبکہ آبادی کی اکثریت زرتشت اور رویت کی پیروکار رہی۔ بدھ مت کے مخلص پجاری ہونے کی حیثیت سے کنشک نے اس دور کی دنیا کی بلند ترین عمارت بنوائی جو بدھ مت کا سٹوپا تھا اور جہاں بدھ مت سے متعلق مذہبی تبرکات جمع کیے گئے تھے۔ یہ سٹوپا پرانے پشاور کے گنج دروازے کے ساتھ باہر بنا ہوا تھا۔ اس سٹوپا کے بارے قدیم ترین روایت چینی سیاح اور بھکشو فایان کی تحریر سے ملتی ہے، جو یہاں 400 عیسوی میں آیا تھا۔ اس کے مطابق سٹوپا کی بلندی 40 چینگ سے زیادہ یعنی اندازنہ 120 میٹر تھی
और उस पर हर तरह के कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। फायान के मुताबिक उसने आज तक जितने मंदिर और सिटोपा देखे थे, कुनशक सिटोपा उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और मजबूत तर था। आसमानी बिजली गिरने से सिटोपा तबाह हुआ और कई बार उसकी मरम्मत की गई। हेवन सांग की 634 ईस्वी में आमद तक सिटोपा का जिक्र मिलता है। बुद्धा से मंसूब तबरुकात जो एक जवाहरात जड़ी टोकरी में रखे थे को 1909 में सिटोपा के एन वस्त में एक जेर जमीन कमरे से खुदाई करके डॉक्टर डी.बी. सपोनर ने निकाला। खरासान पर अरब कब्जे के बाद पश्तून इस्लाम लाने लगे। 1001 ईस्वी में तर्क बादशाह महमूद गजनवी ने अपनी गजनवी सल्तनत को अफगानिस्तान से आगे बरसगीर तक फैलाया। 997 में सबकतगिन की वफात के बाद खरासाहे का गवर्नर उनका बेटा महमूद बना, जिसने बाद अज़ां दौलत सामानिया से अलहदगी इख्तियार करके अपनी सल्तनत कायम की और 999 ईस्वी में सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। इब्तिदाई दौर में पेशावर के इलाके में कई खूनरेज जंगें हुईं, जिनका आगाज़ महमूद और हिंदू बादशाह जयपाल के दरमियान में जंग से हुआ। जयपाल की मुस्तकिल ख्वाहिश थी कि सबकतगिन के हाथों छीनी गई सल्तनत को वापस लिया जाए। जयपाल की मदद के लिए कुछ पठान तो थे, लेकिन उनकी हिमायत ज्यादा देर तक न चल सकी। नवंबर 1001 में जयपाल की शुरू की हुई जंग में इसे शिकस्त हुई और इस समेत इसकी फौज कैदी बनी। आजाद होने पर उसने अपने बेटे आनंद पाल को बादशाह बनाया। महमूद ने पठानों को सजा दी और मुसलमान होने के बाद वो महमूद के साथ वफादार हो गए। अफगान, पश्तून या शहंशाह शेर शाह सावरी ने पेशावर की तामीर नौ को तेजी दी और उसने अपनी दहली से काबुल की शाहरा दर्रा खैबर के रास्ते 16वीं सदी में बनवाई और बाद में मुगलों ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाहत का बानी बाबर जब मौजूदा दौर के उज़्बेकिस्तान से पेशावर पहुंचा और बगराम का शहर आबाद कराया और 1530 में कला दोबारा बनवाया। बाबर के पोते अकबर ने इसका नाम बदल कर पेशावा कर दिया, जिसका मतलब है सरहद पर वाक़े जगह। दुनिया भर से मुसलमान सूफिया, मशाइख, उस्ताद, मेमार, साइंसदान, ताजिर, सिपाही, अफसरशाही, टेक्नोक्रेट वगैरह गौल दर गौल जनूबी एशिया की इस्लामी सल्तनत को आन पहुंचे। मगरिबी ईरान की तरह यहाँ भी शजरकारी और बागात उगाने से पेशावर शहर फूलों का शहर बन गया। खुशहाल खान खटक, जो मशहूर अफगान पश्तून शायर थे, पेशावर के नज़दीक पैदा हुए और उनकी जिंदगी पेशावर से वाबस्ता रही। अफगान आज़ादी की हिमायत करने की वजह से ये मुग़ल बादशाहों बिलखुसूस औरंगज़ेब के लिए मुस्तकिल सरदर्द बने रहे। 18वीं सदी में नासिर शाह के दून हुकूमत में मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद पेशावर पर ईरान ने कब्ज़ा कर लिया। 1747 में लोआ जिरगा ने पेशावर को अफगान दुरानी सल्तनत का हिस्सा बना दिया, जिस पर इस वक्त अहमद शाह दुरानी की हुकूमत थी। 1776 में अहमद शाह के बेटे तैमूर शाह दुरानी ने पेशावर को अपना सरमाईदारुल हुकूमत बनाया और बाला हिसार का किला अफगान बादशाहों की क़यामगाह बन गया। दुरानी दून हुकूमत में पश्तूनों ने जनूबी एशिया पर हमलों में हिस्सा लिया। 19वीं सदी के आगाज़ पर सिखों के कब्जे तक पेशावर दरानियों के सरमाईदारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। पेशावर पर मुख्तसर अरसे के लिए मरहटों का कब्जा भी रहा, जो हिंदुस्तान की सल्तनत पर काबिज थे। उन्होंने 8 मई 1758 को कब्जा किया। बाद में अफगान दरानियों के बड़े लश्कर ने 1759 में पेशावर पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1812 में पेशावर पर अफगानिस्तान का कब्जा हुआ, लेकिन जल्द ही इस पर सिखों ने हमला करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बरतानवी मुहिम जो और ईस्ट इंडिया कंपनी के साबिका एजेंट विलियम मोर क्राफ्ट की सरबराही में एक मुहिम पहुंची तो उसे काबुल की हुकूमत और लाहौर के सिख हुक्मरानों से तहफ़्फ़ुज़ के एक जरिए के तौर पर देखा गया। मोर क्राफ्ट को पेशावर की गवर्नर का ओहदा भी पेश किया गया और इलाके की ईस्ट इंडिया कंपनी से वफादारी पेश की गई, जिसे इसने रद्द करके अपना सफ़र पेशावरी फौजियों के साथ हिंदूकश का सफ़र जारी रखा और काबुल जा पहुंचा। 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने पेशावर पर कब्जा करके यहाँ का दौरा किया और 1834 में इसे सिख रियासत में शामिल कर लिया। इसके बाद शहर का ज़वाल शुरू हो गया। मुग़ल दौर के बहुत मशहूर बागात तबाह कर दिए गए। सिखों के नुमाइंदे के तौर पर इतालवी बाशिंदे पाब्लो इब्ताबाइल ने हुक्मरानी की और उसके दौर को फांसियों और सूलियों का दौर कहा जाता है। पेशावर की मशहूर मस्जिद महाबत खान, जो 1630 में बनाई गई थी, को सिखों के दौर में तबाह कर दिया गया।
सिख मत को कायम रखने के लिए हरि सिंह निलवा ने गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह और गुरुद्वारा भाई बीबा सिंह बनवाए। अगरचे हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पेशावर से सिखों की आबादी इंतहाई कम हो गई है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान और कबायली इलाकों से पनाह की तलाश में आने वाले 4000 सिखों की वजह से आबादी फिर किसी हद तक बढ़ गई है। 2008 में पाकिस्तान में सिखों की सबसे बड़ी तादाद पेशावर में ही आबाद थी। पेशावर के सिख खुद को पश्तून कहलाते और बतौर मादरी जबान हिंद को बोलते हैं। 1835 में दोस्त मोहम्मद खान को शहर पर कब्जे में इस वक्त नाकामी हुई जब उसकी फौज ने दिल खालसा का मुकाबला करने से इनकार कर दिया। दोस्त मोहम्मद खान का बेटा मोहम्मद अकबर खान 1837 की जमरूद की जंग में पेशावर पर कब्जे में तकरीबन कामयाब हो गया था, लेकिन फिर इसे नाकामी हुई। सिखों की हुक्मरानी 1849 में इस वक्त खत्म हुई जब महाराजा रंजीत सिंह की वफात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों के साथ दूसरी जंग जीत ली। 1849 में सिखों के साथ दूसरी जंग के बाद पेशावर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। 1857 की सिपाहियों की बगावत के बाद मकामी फौजियों के 4000 अफराद को बगैर खून बहाए गैर मुसल्लह कर दिया गया। इस तरह 1857 की बगावत के बाद पूरे हिंदुस्तान में होने वाले खून खराबे से पेशावर बच निकला। मकामी सरदारों ने बरतानवी राज का साथ दिया। शहर के बाहर के पहाड़ों के नक्शे 1893 में सर मोर्टिमर ड्यूरेंट ने बनाए, जो इस वक्त ब्रिटिश इंडिया हुकूमत का खारजा सेक्रेटरी था। उसने अफगान हुक्मरान अब्दुर्रहमान खान के साथ मिलकर अफगान सरहद का नक्शा बनाया। 1868 में शहर के मगरिब में बरतानिया ने एक बड़ी छावनी कायम की और पेशावर को अपना सरहदी मरकजी मकाम बना दिया। मजीद बरा पेशावर में उन्होंने कई तरक्कियाती मंसूबे शुरू किए, जिनमें शहर को बजरिया रेल मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने और मस्जिद महाबत खान की तामीर व तज़ीम शामिल। बरतानुहे ने कुन्नगहम कलाक टावर भी बनाया, जो मलिका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की तकरबात के सिलसिले में बनाया गया था। 1906 में मलिका विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया हॉल बनाया, जहां अब पेशावर का अजायब घर कायम है। मगरबी तालीम देने के लिए बरतानिया ने एडवर्ड्स कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज 1901 और 1913 में बिलतरतीब बनाए और बहुत सारे स्कूल्स भी बनाए, जिनको एंजलिकन चर्च चलाता है। पेशावर पश्तून और हिंद को मुशारेन के मरकज के तौर पर उभर कर सामने आए। हिंद को बोलने वाले अफराद बरतानवी राज में यहाँ की सकाफत पर गालिब असर रखते थे। पेशावर में ही गफ्फार खान की चलाई हुई अदम तशद्दुद की तहरीक सामने आई, जो मोहनदास गांधी से मुतासर थी। अप्रैल 1930 में मकामी अफराद के बड़े गिरोह ने किस्सा खानी बाजार में पुरअमन मुजाहिरा किया कि उनके खिलाफ बरतानिया ने इम्तियाजी कवानीन बनाए। बरतानवी अफवाज की फायरिंग से 400 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वाक़ये और उन 400 शहीदों की याद में एक यादगार भी यहाँ मौजूद है, जिसे यादगार शहीदा के नाम से जाना जाता है। 1947 में पेशावर डबमुनीन पाकिस्तान का हिस्सा बन गया कि मकामी सियासतदानों ने पाकिस्तान में शमूलियत की मंजूरी दी। अगरचे अक्सरियत इस इल्हाक के हक में थी, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान की क़यादत में एक छोटे गिरोह का ख्याल था कि जनूबी एशिया में एक कन्फेडरेशन ज़्यादा बेहतर होती, और उन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान को बेहतर समझा। ताहम अवाम की भारी अक्सरियत मुत्तहिदा हिंदुस्तान और ख़ुद को हिंदुस्तानी कहलवाने के सख्त मुखालिफ थे। इंतहाई कलील तादाद पेशावर को अफगानिस्तान में शामिल देखना चाहती थी। यही ख्याल बाद अज़ां पश्तून सत्तान की बुनियाद बना, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से आज़ाद रियासत होती। नए पाकिस्तान की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की नीयत से अफगानिस्तान ने दो रखा हिकमत अमली तैयार की, ताकि शुमाल मगरबी सरहदी सूबे को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सके। एक तरफ तो उसने पाकिस्तान के मुखालिफ भारत से दोस्ती की, तो दूसरी तरफ रूस के साथ भी दोस्ती शुरू कर दी, जो बिलाखिर अफगानिस्तान पर रूसी हमले पर मुंतज हुई। दूसरी तरफ उसने 1960 की दहाई में अपनी मर्जी के सियासतदानों को मुआशी इमदाद मुहैया की। 1960 की दहाई से 1970 की दहाई तक इस हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव रहा। ताहम बाद में अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान को कबूल कर लिया। ताहम पंजाबी तबका अशराफिया के खिलाफ उनकी नापसंदीदगी बढ़ती रही। पश्तूनों को पाकिस्तान में शामिल होने के बाद पाकिस्तानी सियासत और कौमी अफसरशाही में भी आने का मौका मिला, जिसके नतीजे में अयूब खान, जो एक पश्तून थे, पाकिस्तान के सदर बन गए।
अवामी नेशनल पार्टी ने भी पाकिस्तान का हिस्सा बनने को कबूल कर लिया और एक इंतहाई छोटी और गैर अहम सियासी जमात पख्तूनख्वा मिल्लत पार्टी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अलहदगी की बातें जारी रखें। अगरचे अलहदगी की तहरीक बहुत कमज़ोर थी, लेकिन पाक अफगान ताल्लुकात में इसकी वजह से मुस्तकिल दरार पड़ गई। आज पेशावर के पश्तून खुद को फ़ख्रिया पाकिस्तान के रखवाले और पाकिस्तानी कहलाते हैं। 1950 की दहाई के वस्त तक पेशावर दीवारों के बीच घिरा शहर था, जिसके 16 दरवाजे थे। इनमें काबली दरवाज़ा सबसे ज़्यादा मशहूर था। जनवरी 2012 में इस वक्त के DCO सिराज अहमद ने ऐलान किया कि वक्त के साथ साथ शहर के तमाम पुराने दरवाजे पुरानी हालत में बहाल कर दिए जाएंगे। शहरी आबादी के तनासुब से शहर का हजम नहीं बढ़ा और इसी वजह से आलूदगी और आबादी की गुंजानी की वजह से शहर पर बुरे असरात हो रहे हैं। आबादी के अलावा बहुत बड़ी तादाद में अफगान गाड़ियां भी शहर से गुजरती हैं, जिससे शहर की फिजा मजीद आलूदा हो रही है। गाड़ियों के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुआं, मिट्टी और टेट्रा इथाइल लीड फैलता है। ईंधन में मिलावट और गैर मियारी मरम्मत शुदा गाड़ियों की वजह से मजीद आलूदगी बढ़ रही है। बुरी हालत में मौजूद सड़कों और सड़क के कच्चे किनारों पर चलने वाली गाड़ियों से बहुत धूल उड़ती है। अफगान सरहद पर होने की वजह से पेशावर में बहुत बड़ी तादाद में अफगान ट्रैफिक भी आती है। 1980 में अफगान जंग की वजह से पेशावर CIA और ISI के तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन ग्रुपों के सियासी मरकज़ और अफगान मुहाजिर कैंपों का मरकज़ रहा। अक्सर रूसी जासूस उन ग्रोहों में घुसकर तशद्दुद को हुआ देते रहे और रूसी और अमरीकी एजेंटों के दरमियान मान जंग पेशावर में बन गया। 1988 के इंतखाबात के दौरान में तकरीबन 1 लाख अफगान मुहाजिरीन यहाँ आबाद थे और गैर रजिस्टर शुदा मुहाजिरीन की तादाद लाखों में थी। बहुत सारे नस्ली पश्तून अफगान आसानी से पेशावर में मकामी आबादी में घुल मिल गए हैं और अभी तक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। 2012 में पेशावर अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान में राब्ते का जरिया है। पेशावर पाकिस्तान के अंदर अहम शहर की हैसियत रखता है और पश्तून सकाफत और गंधारा आउट का मरकज़ है। तालिबान शिद्दत पसंदों का निशाना होने की वजह से यहाँ पश्तून तमीरात को बहुत नुकसान पहुँचा है। हता के पश्तून शायर रहमान बाबा के मज़ार को 2009 में बम धमाके का निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा की तरह दर्रा खैबर के मशरक़ी सिरे पर वाक़ पेशावर सतह मुर्तफ़ा ईरान का हिस्सा है। हालिया जुग्राफियाई दौरों में वाद पेशावर में सिलिट, रेत और पत्थर जमा होते रहे। दरियाए काबुल और बदनी नाला के दरमियान में सैलाबी मैदान हैं जो शुमाल मगरिब में वारसक तक जाते हैं। पेशावर के मैदान में दाखिल होते हुए दरियाए काबुल कई शाखों में तकसीम हो जाता है, जिनमें 2 ज़्यादा बड़ी है। मशरिक़ को जाने वाली शाख अदीज़ई दरिया कहलाती है जो 4 सद्दा को जाती है और शाह आलम शाख आगे जाकर दरियाए नगुमन में मिल जाती है। पेशावर का मौसम नीम बंजर है और गर्मियां बहुत सख्त जबकि सर्दियां निस्बतन सर्द होती हैं। सर्दियों का मौसम नवंबर से शुरू होकर मार्च के अवाखिर तक और कभी कभार अप्रैल के वस्त तक चला जाता है। गर्मियां वस्त मई से वस्त सितंबर तक जाती है। गर्मियों में गर्म तरीन महीनों का औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और कम से कम औसत 25 डिग्री है। सर्दियों का औसत कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 15.35 डिग्री रहता है। सर्दियों में अक्सर यहाँ दर्जा हरारत 0 डिग्री के करीब चला जाता है, मगर 7 जनवरी 1970 के दिन पेशावर में आज तक की सबसे ज़्यादा सर्दी रिकॉर्ड की गई और दर्जा हरारत -3.9 डिग्री तक चला गया। पेशावर मानसून इलाके में नहीं आता, ताहम बारिश सर्दियों और गर्मियों में भी होती रहती है। मगरिबी असरात की वजह से फरवरी और अप्रैल में बारिशें ज़्यादा होती हैं। सर्दियों की सबसे ज़्यादा बारिश की मिक़दार फरवरी 2007 में रिकॉर्ड की गई जो 236 मिलीमीटर थी। गर्मियों की सबसे ज़्यादा बारिश जुलाई 2010 में 402 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान में 29 जुलाई 2010 को 24 घंटे में बारिश का नया रिकॉर्ड कायम हुआ जो 274 मिलीमीटर था। सर्दियों में होने वाली बारिश गर्मियों की निस्बत ज़्यादा रहती है। 30 साल के रिकॉर्ड के मुताबिक सालाना बारिश की औसत मिक़दार 400 मिलीमीटर है और सबसे ज़्यादा एक साल में 904.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है जो 2003 में हुई थी।
हवा की रफ्तार दिसंबर में 5 नॉट जबकि जून में 24 नॉट तक रिकॉर्ड हुई है। हवा में औसत नमी का तनासुब जून में 46% जबकि अगस्त में 76% है। 18 जून 1995 को सबसे ज्यादा 50 डिग्री जबकि कम से कम दर्जा हरारत 7 जनवरी 1970 में -3.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर की आबादी तेजी से बढ़ रही है और 1998 में आबादी 9,82,816 थी। आबादी में इजाफे की शरह 3.29% है जो पाकिस्तान के दीगर शहरों की औसत से ज्यादा है। खाना व मरदमशुमारी पाकिस्तान 2017 के मुताबिक पेशावर शहर की आबादी 19,70,042 नफूस पर मुश्तमिल है। शहरी आबादी 51.32% है। देहाती आबादी 48.68%। मर्द और औरत का तनासुब 1:1:1। 2002 में आबादी में इजाफे की मौजूदा शरह की वजह से आबादी 20 साल में 2 गुना हो गई है। जिला पेशावर शिमालन जनूबन 50 किलोमीटर जबकि शर्क़न ग़ुरबन 30 किलोमीटर है। शहर सतह समंदर से 359 मीटर बुलंद है। वाद पेशावर तकरीबन गोल है और दरियाए सिंध से खैबर की पहाड़ियों तक फैली है। इसके शुमाल और शुमाल मशरिक में पहाड़ी सिलसिला है जो पेशावर को वाद सवात से अलग करता है। शुमाल मगरिब में खैबर के संगलाख पहाड़ वाक़े हैं और जुनूब में सफ़ेद को की शाख शुरू हो जाती है और यही शाख पेशावर को कोहाट से जुदा करती है। कोलक्का की बुलंदी 6,600 फुट है और खैबर एजेंसी में वाक़े है जो शहर के वस्त से 25 किलोमीटर जबकि हयात आबाद से 15 किलोमीटर दूर है। पेशावर की आबादी का 98.5% से ज्यादा हिस्सा मुसलमान है जिनकी अक्सरियत सुन्नी है। शिया भी अहम अक़लियत है। मौजूदा दौर का पेशावर अगरचे मुसलमान अक्सरियत पर मुश्तमिल है ताहम माजी में यहाँ हिंदू, सिख, यहूदी, ज़रतुश्त और बहाई मजहब के लोग भी आबाद थे। मौजूदा दौर में सिखों की आबादी के अलावा यहाँ हिंदू और मसीही भी आबाद हैं। मसीही शहर का दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह है जिसके पैरोकार तकरीबन 20,000 की तादाद में हैं, जबकि अहमदिया बरादरी के 7,000 अफराद भी पेशावर में मुकीम हैं। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पेशावर से सिखों की आबादी इंतहाई कम हो गई है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान और कबायली इलाकों से पनाह की तलाश में आने वाले 4,000 सिखों की वजह से आबादी फिर किसी हद तक बढ़ गई। 2008 में पाकिस्तान में सिखों की सबसे बड़ी तादाद पेशावर में ही आबाद थी। पेशावर के सिख खुद को पश्तून कहलाते और बतौर मादरी ज़बान हिंद को बोलते हैं। 1940 की दहाई के अवाखिर तक यहाँ एक छोटी मगर फ़रोग़ पज़ीर यहूदी बरादरी भी मौजूद थी, ताहम तकसीम हिंद और रियासत इसराइल के क़याम के बाद वो भारत और इसराइल मुंतकिल हो गए। पेशावर 1978 में अफ़गान खाना जंगी के दौर से ही अफ़गान मुहाजिरीन का मेज़बान रहा है, ताहम 1979 में अफ़गानिस्तान पर सोवियत हमले के बाद इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। 1980 तक 1 लाख पनाह गज़ीनों फ़ी मासूबा दाखिल हो रहे थे, जिनमें से 25% पनाह गुज़ीन ज़िला पेशावर मुक़ीम हुए। अफ़गान पनाह गज़ीनों की बड़ी तादाद के पेशावर में मुक़ीम होने की वजह से शहर के बुनियादी ढांचे पर ज़ोर पड़ा और शहर की आबादियात में बहुत तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। 1988 के कौमी इंतख़ाबात के दौरान में पेशावर में वोट डालने के लिए तकरीबन 1 लाख अफ़गान मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर मुंदरज थे। अफ़गान पनाह गज़ीनों पर अक्सर इंतहा पसंद इस्लामी गिरोहों के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के दौरान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगता रहा। 2015 में पाकिस्तान ने अफ़गान पनाह गज़ीनों को वतन वापस भेजने के लिए एक पॉलिसी मंजूर की, जिनमें कई ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी थी। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी वतन वापसी की पॉलिसी की हौसला अफजाई की, ताहम बहुत से मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में खुद को मुंदरज नहीं करवाया था। गैर मुंदरज अफ़गान मुहाजिरीन जिनके पास रानी अफ़गान शनाख्ती दस्तावेज़ात भी नहीं थीं, उनकी अब अफ़गानिस्तान में कोई सरकारी हैसियत नहीं है। पेशावर डिवीज़न पाकिस्तान की इंतज़ामी तकसीम में खैबर पख्तूनख्वा का एक जिज़ है। गो के मकामी हुकूमतों के 2000 में आई इस्लाहात में उसकी हैसियत ख़त्म कर दी गई है। 1947 में आज़ादी के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा को 2 डिवीज़न में तकसीम कर दिया गया था। ये 2 डिवीज़न डेरा इस्माइल खान डिवीज़न और पेशावर डिवीज़न थे। 1976 तक पेशावर डिवीज़न में हज़ारा और कोहाट के अज़ला भी शामिल थे, जो बाद में डिवीज़न करार दे दिए गए।
اس وقت پشاور ڈویژن کے 3 اضلاع مندرجہ ذیل ہیں: ضلع چارسدہ، ضلع نوشہرہ، ضلع پشاور۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پیارا شہر پشاور۔ امید ہے کہ اپنے پشاور شہر کی خوب سیر کی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور شہر کے تعارف کے ساتھ۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔